Hey traders, a very warm welcome to you all. It's 14 September 4:30 p.m. Saturday, and I welcome you all to the weekly analysis of Nifty and Bank Nifty. Right. So we'll discuss that how was our past week for Nifty 50 and Bank Nifty both, and what can we expect in the coming week, and what big events are coming which can really impact the market, stock market, and its prices, right? So we'll discuss everything. What is the bias? What is the price action being formed? What is the charts? We'll discuss everything, and we'll once see that how the last week was, and we'll set our expectations that what will be the next week, how it will be, and what we can expect from the markets for the next week. All right, traders. So without consuming any more time, let's straight away go to the charts. I'll start with Nifty 50. But before even going to the charts, I would just like to mention, देखो अगर आपको videos अच्छी लगती हो, right, and if you find our content very useful, leave a like, leave a subscribe. If you have not subscribed to the channel, if you're first time viewing this video, see our other content, and if you are liking our videos, subscribe to the channel, leave a like, leave a comment. If you have any queries, I'll leave my telegram link in the description. Do join the group. All right. And if you are someone new, subscribe to the channel. If you are someone from the telegram group, leave a like. All right, so let's start. I'll go to the Nifty 50s chart, and एक बार हम डिस्कस कर लेंगे. We'll once discuss that what is our monthly outlook, because I've been skipping making these analysis videos from couple of weeks, I think around a month, and now I think once एक बार discuss just on a short span कि week monthly पे क्या चल रहा है, and then we'll discuss weekly, and then we'll discuss it for Monday and couple of the whole of next week. ऑलराइट, देखो मंथली में निफ्टी में जैसा हमने लास्ट मंथ डिस्कस किया था, उससे भी पहले मंथ डिस्कस किया था, until unless we close below prior month low, there won't be any bearishness, right? Nifty will be keep going upwards and upwards. एंड अब अगर आप यही चीज़ इफ़ यू कंपेयर विद बैंक निफ्टी, राइट, बैंक निफ्टी का अगर एक बार मैं सारे आई क्लियर आउट द ड्राइंग्स, अगर आप बैंक निफ्टी में मंथली कब देखोगे ना, सो बैंक निफ्टी फ्रॉम past 3 months, if you past 4 months, if you consider this month also, is stuck in a range, is stuck in a basically in a thin range of 2000 point from past 4 months. Can you imagine this? If you take the month of this one, June, July, August, and September. So past 4 months, the price is rotating between 52,000 and 50,000. Even I mean, if it went till 49,000, but it never closed. The monthly candle is closing between this 2000 point range. So Bank Nifty is sideways from past 4 months, but Nifty is continuously going up from past 4 months. So this tells us what, that banks are underperforming for past 4 months, and if now, if at all, banks start to perform, or banks break out this range, this 2000 पॉइंट रेंज, तो बैंक्स के लिए काफ़ी अच्छा या काफ़ी बुरा हो सकता है. क्योंकि अगर ये रेंज के नीचे मंथली कैंडल क्लोज होती है, तो फिर बैंक्स अपनी ये वाली ट्रैजेक्टरी स्टार्ट कर देंगे, ये वाली मंथली बेसिस पे. मंथली पे एक कैंडल यू बनेगी, फिर दूसरी कैंडल यूँ, फिर एक इसका रिट्रेसमेंट, फिर एक इनसाइड कैंडल, देन अगेन दिस कैंडल. सो वी कैन स्टार्ट a price action like this if we break down of this range. But if we break out of this 50 to 500 level, right, we have already closed a daily candle above prior month high, which is kind of bullish for me. But let's first talk about निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का हम डिटेल में बात करेंगे. सो निफ्टी में क्योंकि देखो ऑटो अभी तक चल रहा था, आईटी चल रहा था, सो there is no bearishness on the monthly chart, and still it has potential to go up. अगर हम फिबोनाची लेवल लगाए मंथली पे, तो it has still potential to go. If we come on weekly charts, weekly पे बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन बना हुआ है. देखो लास्ट वीक हमारा क्या बना था, जो एक हमारी बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी थी हमारी यहाँ पे, अगर आप देखोगे केयरफुली, उसके बाद उस कैंडल से बड़ा कैंडल साइज एक और, यू मीन इफ़ यू वांट टू से अनदर बुलिश एंगल्फिंग, मतलब पहले एक बेरिश एंगल्फिंग बना. बेरिश एंगल्फिंग क्या होता है कि जब आपकी प्रायर कैंडल एक छोटी कैंडल होती है एंड उसको पूरा एंगल्फ कर लेती है बड़ी कैंडल. सो आप इसको अगर रिवर्स में देखोगे, अगर मैं इसको आपको यहाँ पे डालूँ इन्वर्टेड, तो ये एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल होती है, राइट.
अगर आप एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस में देखोगे एक इनसाइड कैंडल होती है, ठीक है। तो इसको वापस अपन नॉन इन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। सो वीकली में द ट्रेंड गॉट बेरिश, बट जो हमारा थ्री कैंडल स्टिक रूल है फेमस, उसके हिसाब से इस रेड वाली कैंडल स्टिक का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ था। क्यों? बिकॉज हाई इज अबव द प्रायर हाई। फॉर द ट्रेंड टू बी चेंज आर हाई शुड बी लोअर देन द प्रायर हाई, आर क्लोज शुड बी बिलो देन द प्रायर लो, एंड आर लो शुड बी बिलो द प्रायर लो। तो ये तीन कंडीशन इस कैंडल में सेटिस्फाई नहीं हो रही, बिकॉज हाई इज अबव द प्रायर हाई, नॉट लोअर द प्रायर हाई। Alright, so we have also closed above the prior week high. So I think next week technically bullish होना चाहिए, but आई थिंक मंडे को जापान का डिसीजन है रेट कट का, कि वो रेट कट करेगा या नहीं करेगा। एंड आई थिंक ऑन वेडनेसडे, नॉट आई थिंक बट फॉर श्योर ऑन वेडनेसडे 18 सितंबर फेड का रेट कट डिसीजन है, रेट कट होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट 25 बीपीएस और 50 बीपीएस, दैट इज certainly which we will देखो, अगर 25 bps होता है रेट कट, it will be bearish for the markets. If there is a 50 bps rate cut, it can be first positive, then I think bearish in the later part of the month. All right, so वीकली में हमें क्या मार्क करना है? प्रायर वीक हाई एंड प्रायर वीक लो। प्रायर वीक हाई है 25,438, ये एक लेवल मार्क कर लो सिंपल। प्रायर वीक हाई इज 25,440। इस इफ द मार्केट क्रॉसेज अबव दिस लेवल और वी आर closing a daily candlestick above this level, we have a probability of going more up. But if the markets go bearish and we break prior week low, which is 24,754, so we can come down towards 24,500 would be our first target. Then if also 24,500 is not sustained, तो हम आ सकते हैं सीधा 24,000 पे, यहाँ तक। क्योंकि दिस अगर क्योंकि ये टूटा तो फिर मेरे को ये टारगेट दिख रहा है सीधा आपका वीकली 20 में, राइट। एंड ये वाला देखो वीकली 5 से कितना अच्छा सपोर्ट रहा था, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ था, बट ये ट्रेंड सडनली रिवर्स हो गया इस वाले कैंडलस्टिक से, थ्री कैंडलस्टिक रूल। ऑलराइट, सो वीकली में ऐसा अभी कोई बेरिश है नहीं, बुलिशनेस है। ज़बरदस्ती नेगेटिविटी ढूंढने का कोई सेंस है नहीं। शॉर्ट करने जाएंगे मार्केट को, हमको मार्केट ने बहुत बार बता दिया, ज़बरदस्ती मुझे शॉर्ट करोगे मैं आपको शॉर्ट कर दूंगा। ऑलराइट, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो प्राइस एक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, ठीक है। अब देखो फ्रॉम द लोज ऑफ 21,000 जो हमारा इलेक्शन रिजल्ट का लो था, वहाँ से हमने काफ़ी एक अच्छी रैली दी है। एंड उसके बाद हमें एक डिप भी मिला अराउंड 25,000 से, एक डिप मिला। और बहुत सारे लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि यहाँ से हमारा कुछ ऐसा प्राइस एक्शन बनेगा कि यहाँ से ये ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, डबल टॉप। और हमने भी यही एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा मार्केट में, राइट। वी एक्सपेक्टेड दिस, और हमने चार्ट भी शेयर किए थे। एंड आई थिंक फॉर अ सर्टेन वाइल यहाँ पे वो हुआ भी। बट सडनली सिंस अब क्योंकि देखो पूरा जो हमारा अब निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन जो या बैंक निफ्टी जो होके रखा है ना, दैट इज एवरीथिंग डेरिवेटिव्स ड्रिवन, सब कुछ अब ऑप्शन ट्रेडिंग ड्रिवन है, इसमें फंडामेंटल कुछ भी नहीं है। नहीं तो मुझे आप बताओ सडनली इतना साइडवेज चल रहा, और ऐसा तो कोई न्यूज़ आई नहीं उस दिन कि भाई ये कैंडलस्टिक आ जाए। आप ये कैंडलस्टिक अगर आप देखते हो तो कितने दिन का यहाँ पे जो डाउनफॉल है वो एक ही दिन में रिवर्ट कर दिया, और नॉट इवन एक दिन, in span of just 1 hour it erased I think around 3 and 3 6 and 8 days of fall. सो इसका क्या मतलब है? इतना तो इंडियन इकोनॉमी में कोई बुलिशनेस है नहीं, हमारी इकोनॉमी स्लाइड कर रही है, हमारे फैक्टर सारे वो हैं, बट इट्स जस्ट, अब आप देखो, मैं आप बोलोगे कि आप तो फालतू में बेरिश होते हो, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल कोई रीज़न अगर है तो मार्केट जाएगा, और हमें खुशी भी होगी मार्केट जाए। बट विदाउट फंडामेंटल अगर कोई ऊपर चीज़ जा रही है तो उसका कोई सेंस नहीं है, एंड इट इज़ जस्ट अ डेरिवेटिव्स ड्रिवन मूव। यहाँ पे बहुत सारे इतने टाइम से अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे, राइट, तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स थे मार्केट में, वो शॉर्ट सारे के सारे एक साथ कट गए। ऑलराइट, सो देखो डेली में अभी एक काइंड ऑफ, देखो ट्रेंड तो चेंज हुआ नहीं, ये बहुत बड़ी कैंडल स्टिक थी, बट एक रेड कैंडल स्टिक क्लोज हुई है क्योंकि हमने मार्केट में रेड क्लोजिंग दी है, बट फ्यूचर्स पॉजिटिव में है, तो दिस इज इंडिकेटिंग दैट देर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ बुलिशनेस बट नॉट दैट मच। ऑलराइट, सो अब हमें टेक केयर क्या करना है? सिंपल है, प्रीवियस वीकली है, प्रीवियस डेली है, सेम लेवल है, 25,430 के ऊपर निकलेगा। 25,500 पहला टारगेट है। वन सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज दिस। 25,500 इज आर फर्स्ट टारगेट, और 25,500 निकलता है तो वही हर 50 पॉइंट का टारगेट बना लो। 550, 25,600, 650 एंड 700। तो ये 6-7 टारगेट्स हैं 25,700 तक ऊपर के।
बट अगर इसके नीचे निकलता है, द प्रायर डे लो इज 25,300, प्रायर डे लो है 25,300, इसके नीचे निकलता है तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 25,200 का। सिंपल है, ठीक है। 5 EM डेली 5 EM में है, पहला टारगेट ये आएगा। यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता तो अगर इफ द मार्केट ब्रेक्स डाउन दिस तो 25,000 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा आफ्टर 25,200। सिर्फ इतना सा एनालिसिस है। तो ये नेक्स्ट वीक के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट डे मंडे के लिए जो एनालिसिस होगा वो हम 15 मिनट्स पे करेंगे इंट्राडे पे, और वो हम केस वाइज एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो टू ऑन आर्ली बेसिस। अब देखो आर्ली में एक बहुत अच्छी चीज़ ट्रेंड मिलता है हमें यहाँ पे। देखो अगर आप एक बुलिश ट्रेंड देखोगे ना, जैसी मार्केट आर्ली में 5 EMA के ऊपर निकलता है, एंड 5 EMA सब ये मैंने आई हैव एक्सप्लेन दिस मल्टीपल टाइम्स इन माय वीडियोस, एज सुन एज द मार्केट takes out 5 EMA and the prices also take out all the EMAs, ऑलराइट। तो आपका क्या होता है, प्राइस एक्शन बुलिश होता है कब तक, जब तक प्राइस आपकी डिप नहीं करती बिलो 20 EMA आर्ली, या फिर 5 EMA के हिसाब से चलती जाएगी और 20 EMA पर अगर डिप आती भी है तो आर्ली 20 EMA पे आप वापस डिप बाय कर सकते हो, 20 या 50। ये देखो यहाँ पे चली 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 20 पे डिप आया बाय हो गया, 20 पे डिप आया बाय हो गया, 20 पे डिप आया बाय हो गया। सो दिस इज हाउ। अब अच्छा यहाँ पे ये ट्रेंड कब चेंज हुआ, व्हेन आर प्राइसेस कट 5 EMA एंड 5 EMA भी सबको एक साथ काट दिया, काटते चली काटते चली काटते चली। कब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ, जब तक ऊपर 5 EMA यहाँ पे कटा नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, इवन यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया, गैप डाउन हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखो, कभी भी अगर बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग हो रही हो बट वो किसी रेजिस्टेंस के पास क्लोज हो रहा है ना, तो अगले दिन गैप डाउन हो जाएगा। एंड वाइस वर्सा कि अगर वो किसी सपोर्ट के पास क्लोज हो रही है तो अगले दिन गैप अप हो जाएगा, ऑलराइट। आर्ली में ही हमेशा ध्यान रखना। देखो यहाँ रेजिस्टेंस का क्लोज हुआ, गैप डाउन, फिर वहां से चला चला चला, बट द मोमेंट यहाँ पे हमने आर्ली पे निकाला तो इतनी बड़ी रैली आ गई, 5 EMA को निकाला तो रैली आ गई, ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे रिवर्ट हो सकती है। मैं हमेशा हिस्ट्री क्यों डिस्कस करता हूँ, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आनी चाहिए कि मार्केट में पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं, मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका जो क्लोजिंग आई है आर्ली की वो बिलो 5 EMA है, तो टेक्निकल टारगेट आपका, अगर मार्केट हम फ्लैट टू गैप अप नहीं खोलते मंडे को, जो कि मुझे गिफ्ट निफ्टी में दिख रहा है हल्का सा 50-60 पॉइंट का गैप अप है, तो ठीक है इसके ऊपर ही रहेगा। बट अगर फ्लैट टू लिटिल बिट गैप डाउन दिखता है, सो एक एंट्री हमारी इसके नीचे बन सकती है 25,300 के नीचे, विच इज़ आई थिंक प्रायर डे लो 25,300, राइट। प्रायर डे लो 25,300 है। तो हम प्रायर डे लो को देखो 25,300 को कैसे मार्क करते हैं, सिंपल है, 15 मिनट्स में आ जाते हैं। अब यहाँ से इंट्राडे का डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है। ये देखो मैं आपको एक ये जोन मार्क करके दे देता हूँ, ये मार्क कर लो, एंड इसको आप मार्क कर लो एक ग्रीन जोन। ग्रीन जोन मीन्स इट्स अ गुड सपोर्ट। टेक्निकली मार्केट अगर इस एरिया में कहीं खुलता है, इस एरिया में, तो ये मार्केट के लिए बुलिश ही होगा, मतलब साइडवेज टू फ्लैट ही ओपनिंग होगी और यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट लेके यूँ निकल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन। बट इफ द मार्केट्स ओपन बिलो दिस और ब्रीचेस दिस इन द फर्स्ट आवर और सेकेंड आवर, तो हमारा दूसरा टारगेट हो जाएगा, मतलब पहला टारगेट हो जाएगा 25,200 वाला, ठीक है। अगर 25,200 भी हमने जैसे वीकली में डिस्कस किया था, अगर 25,200 भी ब्रीच होता है तो 25,000 स्ट्रेट टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ऑन द अपसाइड अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आपको टेक केयर करना है 25,440 का लेवल, दैट्स इट। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे हम इसको एक बार एक यहाँ पे और आपको जोन मार्क करता हूँ, और यहाँ पे इसको हम रेड कर देते हैं मार्क। क्यों, क्योंकि ये है एक आपका रेजिस्टेंस जोन। तो अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ही आप कुछ बुलिश जाना इन लेवल्स के लिए, बट इस रेंज में ट्रेड मत करना, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इस ट्रेंड में अगर इस रेंज में आप ट्रेड करोगे तो आपको कुछ ऐसा प्राइस एक्शन मिलेगा। अगर आप स्कैल्पर हो, सीजन स्कैल्पर हो, आपको स्कैल्पिंग आती है, तो यहाँ पे एक बुलिश एंट्री बनाना 50 पॉइंट का एसएल लेके। अगर ये ब्रीच होता तो ठीक है, नहीं होता तो आपको यहाँ से एक रिबाउंड मिल जाएगा। दैट्स इट, सिंपल स्ट्रैटेजी, कोई इसमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। नीचे की लेवल्स मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी हैं, ऑलराइट। एंड आपको सिर्फ अब देखो ये बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड है, और ये जो रैली है ना, यहाँ पे इतने सारे गैप्स क्रिएटेड है, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स अगर किसी को मालूम होगा, सो देर आर सो मैनी फेयर वैल्यू गैप्स क्रिएटेड कि ये एक बार इसका 50% रिट्रेसमेंट देना तो चाहिए। बट हमारे स्टॉक मार्केट में नेगेटिविटी तो आती नहीं है ना, नेगेटिव प्राइस एक्शन का भी होता नहीं है। देखो यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, 5 मिनट 5 EMA टूटा, चलते गया क्या अच्छा ट्रेंड मिला 5 EMA के हिसाब से। तो अगर मंडे को ये ट्रेंड निकलता है तो मज़ा आएगा। एंड आने वाले वीक में जो इवेंट्स आ रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं,
आई थिंक मंडे को जापानीज सेंट्रल बैंक का डिसीजन है, अगर वो करता है तो येन की अनवाइंडिंग हो जाएगी, येन कैरी ट्रेड की अनवाइंडिंग होगी। ऑल राइट, सो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर निफ्टी फिफ्टी। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मंथली हमने आपको जैसे बताया साइडवेज है, एंड बैंक निफ्टी इज प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग बिग। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, देर इज समथिंग बिग गोना हैपन इन बैंक निफ्टी। अगर हम वाई डेटा देखेंगे तो हमें शायद थोड़ा बहुत समझ में आए कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखेंगे इसके बाद। बट बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन है पिछले 2 महीने से ये एक ही रेंज में फंसा हुआ है, एंड अगर ये निकला इस रेंज से, मैं आपको एक ये रेंज मार्क करके देता हूँ। ऑलराइट, ये देखो, इस रेंज के बाहर अगर क्लोजिंग हुई तो इतना ही मार्क ऊपर कर लो आप, और इतना ही मार्क नीचे कर लो। तो ये मैं आपको दो टारगेट दे रहा हूँ इसी वीकली में, 54,000 ऑन द अपसाइड एंड 49,000 ऑन द डाउन साइड। ठीक है, मैं और कुछ नहीं बोलूँगा। जिसको पोजिशनल ट्रेड करना है वो ये सिर्फ दो लेवल याद रख ले, और एक ये रेंज, सॉरी मैंने वो मिटा दिया, हाँ, सिर्फ ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने में वेट करें, क्योंकि अगर मार्केट इसी में रह गया तो ये एक ऐसा कुछ पैटर्न बन जाएगा यू, एंड देन वी कैन ब्रेकआउट फर्दर, ऐसा कुछ बनेगा। बट वी हैव टू वेट विद पेशेंस अंटिल टिल द मोमेंट वी ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसा कुछ बेरिशनेस तो नहीं है, बट इतनी बुलिशनेस भी नहीं है। बुलिशनेस जब आएगी जब हम ये वाला हाई, ऑलमोस्ट हम उसी हाई पे हैं, बट जब ये प्रॉपर वे में निकल जाएगा तो ही बुलिशनेस आ सकती है। ठीक है, ये दो क्रूशियल लेवल थे ऑन द अपसाइड मार्केट के पास, 54,000 एंड नीचे 49,000। ऑलराइट, अब देखो वीकली में वी हैव क्लोज्ड अबव द प्रायर वीक हाई अगेन। यहाँ पे हमारा प्रायर वीक लो के नीचे क्लोज हुआ था, बट जो हाई था वो दैट वाज अबव द प्रायर हाई। अब यहाँ पे लोअर है बिलो द प्रायर लो, राइट। तो यहाँ पे भी ट्रेंड यही वाला ट्रेंड है जो इस कैंडलस्टिक का बुलिश ही ट्रेंड है, ना इसने रिवर्स किया और ना ही इसने रिवर्स किया। ठीक है, बट सिंस ऑन अ टेक्निकल टर्म्स वी हैव क्लोज्ड अबव द प्रायर वीक हाई, सॉरी हाँ प्रायर वीक हाई, वी आर स्टिल बुलिश। सो नाउ व्हाट विल मार्क इज द लेवल ऑफ 52,000, द ओनली एंड ओनली अल्टीमेट लेवल 52,000। ठीक है, इस मतलब और कोई लेवल बचा नहीं 52,000 के ऊपर। 52 अगर निकलता है एंड इफ इट सस्टेन्स देन वी कैन सी द लेवल ऑफ 50, आई थिंक 53,000 in the next week if we sustain, if we close a daily candlestick of 52,000, तो फिर शॉर्ट अनवाइंडिंग ट्रिगर होगी एंड वी कैन सी अ लेवल ऑफ 53,000 बैंक्स। ऑलराइट, डाउन साइड में बहुत दूर है अभी, डाउन साइड 50,000 है प्रीवियस वीक लो, इसके नीचे ही कुछ अच्छा शॉर्ट बनेगा, वरना नेक्स्ट वीक मार्केट इसी रेंज में आपको डोलता हुआ देख सकता है। वॉट इज क्रूशल इज वी नीड टू टेक आउट दिस लेवल एंड दिस लेवल, नहीं तो क्या होगा, मार्केट फिर धीरे 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 करके यूं आएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, यूं ही चलता रहेगा। ठीक है, अब और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग वन मोर थिंग। सी, नाउ सिंस द मार्केट हैज़ गिवन 2 वीक्स ऑफ वाइल्ड मूव, थर्ड वीक कैन बी एन इनसाइड कैंडल। ये एक इनसाइड कैंडल हो सकती है, चाहे भले ही आपकी मान लो मार्केट, अब क्योंकि गैप अप खुल रहा है 50 पॉइंट, तो यहाँ कहीं खुलेगा तो हो सकता है ये चले जाए, गैप अप गैप डाउन स्पॉइल करते हैं। बट अगर मार्केट को साइडवेज रहना है तो मार्केट को ऐसी कैंडल देगा, या तो ऐसी देगा या ऐसी इनसाइड कैंडल देगा, एंड देन नेक्स्ट मंथ फिर इस इनसाइड कैंडल का जो टॉप एंड हाई होगा, लो और हाई होगा, वो ब्रेकआउट होगा, तभी कुछ मजा आएगा। बट अभी एज सच मेरे को कोई बेरिशनेस बैंक निफ्टी में भी नहीं दिख रही, उल्टा आई एम प्लानिंग फॉर लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी। Alright, let's see if we breach the level of 52,000. My target for the next week will be 53,000. Alright, so let's go to the daily level. डेली पे देखो मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैमर क्लोज किया है, हैमर तो क्या डोजी ही मान लो आप इसे, अनडिसाइसिवनेस है, और 52,000 के ऊपर निकलेगा तो फर्स्ट टारगेट आपका हो गया 52,350, नहीं ये भी नहीं है 52, आप मान लो ये 500, सिंपल 52,500, 52,500 के ऊपर 53,000। ऑन द डाउन साइड मार्क द प्रीवियस डे लो विच इज इज 51,650। 51,650 के नीचे ही हम शॉर्ट करेंगे मंडे को, उसके नीचे नहीं करेंगे। तो प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, और अगर इसके नीचे आता है तो वीकली टारगेट फिर हो जाएगा 51,000, अगर 51,650 के नीचे आता है तो। लेट्स गो टू आर्ली, आर्ली एक बार देख लेते हैं क्या ट्रेंड चल रहा है, वही सेम निफ्टी वाली बात है। लेट्स स्ट्रेट गो टू 15 मिनट्स। ऑलराइट, अब देखो आर्ली में यहाँ पे भी 5 EMA के नीचे क्लोज आया है, सेम इन निफ्टी ऑल्सो, सेम इन बैंक निफ्टी, बट यहाँ पे बड़ी EMA थोड़ा पास में, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये सपोर्ट ले ले। सो द लेवल यू नीड टू टेक केयर फॉर मंडे is prior day high which is
अगर आप ये ले लो 52,000 ये प्राइड है। 52,000 के ऊपर आपको पहला मूव 52,250, दूसरा आपको मैंने मार्क कर दिया 52,500। बट पॉइंट इज, अगर मार्केट खुल रहा है तो मार्केट को सस्टेन करना ज़रूरी है। अब 130 मिनट कैंडलस्टिक शुड सस्टेन लाइक दिस, उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद यूँ कुछ आप ले सकते हो। बिना सस्टेनमेंट के नहीं होगा, क्योंकि मान लो मार्केट अगर यूँ गया और विक बना दी यहाँ पे ऐसी, और ये पूरा रिट्रेस हो गया, यूँ आ गया, राइट, मार्केट वेंट अप, बट एक ऐसी विक बना दी और मार्केट ने क्लोजिंग दे दी इसके नीचे कुछ ऐसी, तो दिस विल बी बेरिश फॉर द प्राइस एक्शन, बेरिश फॉर द बैंक निफ्टी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर ऑन द डाउन साइड इफ़ वी ब्रेक 51,750, इंट्राडे का एक्शन बता रहा हूँ, अगर फ्लैट टू हल्का सा गैप डाउन खुल गया और हमने 51,650 ब्रीच किया तो ये पूरा मूव आपके लिए खुल जाएगा। बट वहीं पे अगर हमने गैप अप खोल दिया तो ये वाले मूव्स ओपन हो जाएंगे। तो एक बहुत थिन रेंज में फंसा हुआ है ये भी अभी, एंड गैप अप है और गैप डाउन ही आपको कुछ क्लू दे सकता है। ऑलराइट, सो ये था बैंक निफ्टी का डिस्कशन। मैंने ऊपर नीचे के ज़्यादा लेवल डिस्कस किए नहीं, 54,000 तक मैक्स कर दिया और नीचे 51,000 तक मैक्स कर दिया है। ठीक है, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी में आई एम नॉट सीइंग एज सच ऑफ बेरिशनेस बेरिशनेस। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये ट्रेंड लाइन और मार्क कर लेना, ये बहुत क्रूशियल ट्रेंड लाइन है, क्योंकि मार्केट हो सकता है मंडे को गैप अप खोलने के बाद एक डिप दे जो ये पे सपोर्ट लेके जा सकती है। तो यहाँ पे आप एट दिस पॉइंट यू कैन ट्राई वन बुलिश एंट्री, इतना से एसएल देना ये इसका 51,650 51,600 और यहाँ पे बुलिश एंट्री ट्राई करना। ठीक है, I hope this strategy is pretty much clear. And one structural change I'm gonna bring in my system is that I'll be more explaining on the videos rather than giving text messages on link on my Telegram. All right. So जिसको भी focused अगर देखना हो please channel को follow करना and keep up with the videos. All right. So the thing is now if you see right, अगर market यहाँ पे हम ranges mark कर लेते हैं right, so ये वाली हो जाएगी हमारी एक रेड रेंज विच विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। ऑलराइट, एंड अगर इसको हम क्लोन कर दें एंड यहाँ पेस्ट कर दें तो ये हमारी हो जाएगी सपोर्ट लाइन, सपोर्ट रेंज। सो मार्केट को अगर मार्केट मंडे को फ्लैट खुलता है, गैप अप खुल गया इसके ऊपर, तो आपको लॉन्ग्स मिल जाएंगे यूँ, इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल गया आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे यूँ। बट if the market is opening flat and is trading for the first hour, first 1.5 hour between this range only, एक्सपेक्ट करना कि उस दिन साइडवेज ही होगा। और क्यों होगा साइडवेज मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे ना तो ऑलरेडी यार 2 दिन की इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो गई, मार्केट थक, आई थिंक बैंक निफ्टी थक चुका है। तो अगर फेड का रेट कट होता है तो ये अनवाइंडिंग ट्रिगर करेगा, और अनवाइंडिंग अगर ट्रिगर हुई तो ये फिर से रिवर्सल की तरफ जा सकता है। ठीक है, और क्या डिस्कशन है 5 मिनट्स पे तो मैंने डिस्कस कर ही दिया है आप लोग के लिए। ये 2 रेंजेस मार्क कर दी निफ्टी निफ्टी। ओआई डेटा पे चलते हैं। ठीक है, निफ्टी का ओआई डेटा देखो क्या चल रहा है, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ। टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है 25,000 पे, बट अभी नियर टर्म सपोर्ट है 25,300 पे। इसलिए बोल रहा हूँ अगर 25,300 तोड़ा मार्केट ने ये वाला लेवल तो ईजिली 25,200 तो वन आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप निफ्टी की ऑप्शन चेन भी देखोगे ना, ये तो मंथली 19 सितंबर की 25,350 का जो कॉल ऑप्शन है, कॉल और पुट दोनों, इसमें कॉल का ऑप्शन सस्ता है और पुट का ऑप्शन महंगा। मतलब आपका जो सिंथेटिक फ्यूचर है, सिंथेटिक फ्यूचर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपका कॉल माइनस पुट, मतलब 116 माइनस 132 नेगेटिव आ रहा है तो मीन्स आपका डिस्काउंट में है। अगर ये पॉजिटिव आता है मीन्स फ्यूचर प्रीमियम में है, बट ये नेगेटिव आ रहा है तो आपका ये जो सिंथेटिक फ्यूचर चल रहा है ये भी डिस्काउंट में चल रहा है। ये बताता है कि मार्केट मंडे को अगर खुला गैप अप तो ये लोग नीचे पुल कर देंगे। सॉरी फॉर द यू नो इट्स बिन लेजी डे। सो ये लोग नीचे पुल करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑलराइट, सो और 25,300 पे प्रीमियम है, आपका फ्यूचर जो है प्रीमियम है। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर 25,300 टूटा तो ये जो पैरिटी है ना ये बदल जाएगी, ये पुट वाले है ना जो प्रीमियम में आ जाएंगे। अभी सिंस क्योंकि ये पुट ज़्यादा है 25,350 का इंडिकेट कर रहा है कि 350 के ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक है, ये है। अच्छा, हाई आपका सपोर्ट हैवी सपोर्ट है 200 पे, बट 300 पे माइनर एक सपोर्ट है 16 लाख है यहाँ पर और 41 लाख है। तो 300 आई थिंक
इजीली ब्रेकेबल है, क्योंकि यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं है। 25 200 पे अच्छा का सपोर्ट है, बट 200 टूटा तो सीधा 25,000 है, जैसे हमने चार्ट में डिस्कस किया। बट ऑन द अपसाइड 25 400 पे हैवीएस्ट रेजिस्टेंस है, इसलिए बोल रहा हूँ अगर 400 निकला, क्योंकि नीचे साइड पे ना देखो इमीडिएट सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, बट पीछे जाके सपोर्ट है। बट बेरिश साइड में इमीडिएट सपोर्ट है, तो अगर ये टूटा तो सीधा 500 600 और 700 आपका खींचता चला आ जाएगा। सिंपल है, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। और एक चीज़, मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। देखो एट द मनी आपका आईवी है 9.6। जिस दिन निफ्टी में ये वाला मूव आया था ना एट द मनी, पता है क्या चल रहा था एक्सपायरी का? आपका एट द मनी चल रहा था 31 का। तो हमेशा ये पॉइंट याद रखना, कभी भी ऑप्शन चेन में आना यहाँ पे एट द मनी का आईवी देख लेना, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बहुत बड़ा मूव आने वाला है, राइट। तो अभी ये मैं हर एक्सपायरी पे देख रहा हूँ, हर मंथ पे देख रहा हूँ, इतना कोई एंटिसिपेशन है नहीं कि भाई ऐसा कुछ बड़ा मूव आएगा। मे भी हो सकता है मंडे से ये बिल्ड करना कुछ स्टार्ट करें, तो मंडे से आइज रखना एट द मनी वीआई पे, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, बैंक निफ्टी का आपका अगर देखें ओआई, तो बैंक निफ्टी में हैवीएस्ट सपोर्ट है 51 500 और हैवीएस्ट रेजिस्टेंस है 52,000 पे। 52,000 पे तो बहुत अच्छा है, वही बोल रहा हूँ। देखो 52,000 के बाद सीधा 5500 पे है। ओआई भी ये कह रहा है अगर 52,000 टूटा ऑन द अपसाइड एंड सस्टेन हुआ, 500 को आने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ऑन द डाउन साइड अगर आपका 15,500 टूटता है तो 15,000 भी आने में टाइम नहीं लगेगा टोटल। अच्छा, वाई चेन में देखो, मैं आपको फुल डे का अगर दिखाऊं तो शॉर्ट्स अनवाइंड नहीं होके गए हैं, सिंपल सी बात है। आप देखोगे तो सिर्फ शॉर्ट्स 35 लाख ऐड होके गए, पुट 51 लाख ऐड होके गए। एंड इफ यू सी राइट, वन थिंग ऑल्सो आई वॉन्ट टू शो यू इन दिस बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एट द मनी पे अभी आपका 51 800 पे बैंक निफ्टी कहाँ है? 51 890, 51 900 का भी अगर आप देखते हो, 51 938 का देख लो आप, ये भी डिस्काउंट में चल रहा है, ठीक है। तो 51 900 भी डिस्काउंट में चल रहा है, तो मतलब बैंक्स में भी इतना कोई सिंथेटिक फ्यूचर बचा नहीं है, सिंथेटिक प्रीमियम बचा नहीं है। तो थोड़ा वीकनेस है डेटा में, बट प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं। अच्छा, अगर इसका वो देखा जाए हमारा, तो ये तो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। ऑलराइट, सो दिस वाज द डिस्कशन फॉर निफ्टी 50 फॉर द कमिंग वीक एंड फॉर मंडे। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। एंड ये जो लेवल्स ट्रेडर्स मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लेवल्स हैं, प्लीज़ गो एंड मार्क देम ऑन योर चार्ट्स। एंड ये फॉलो होंगे क्योंकि दीज लेवल्स आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जहाँ पे सबसे ज़्यादा सप्लाई होगी वहाँ से मार्केट गिरेगा, एंड वहाँ से मार्केट चढ़ेगा जहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। सो प्लीज़ गो एंड मार्क दिस लेवल ऑन योर चार्ट्स, एंड जो रेंज मैंने बताई है उसके अंदर ट्रेड मत करना। आई होप आई एम एबल टू मेक यू क्लियर ऑन द स्ट्रेटेजी फॉर नेक्स्ट वीक एंड मंडे। If you find this video helpful, please leave a like, leave a comment, subscribe to the channel. Thanks, traders. Cheers. Be safe in the markets.